اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ سب کے پاس کاغذ قلم ہونا چاہیے تاکہ جو کوئی نئی چیز آئے تو آپ ضرور اس کو لکھیں تاکہ آسانی ہو ہمیں قرآن مجید میں۔ یہ آج جمعے کا دن ہے تو میں نے کہا ذرا قرآن مجید سے ہٹ کے کچھ چیز پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو سیم عربک ہے تو اس لیے تاکہ آپ کو آنی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ یہ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ ہے، تو اس کو ذرا دیکھیں پہلے۔ یہ ہے انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً۔ الصلاۃ نماز، جو نماز ہے وہیں سے مراد ہے۔ نماز جو ہے تنہا، یہ روکتی ہے۔ اب یہ مؤنث ہے، تنہا کا جو لفظ ہے نا، یہ تنہا ایسے لکھا جاتا ہے، تنہا اس کا جو ہے وہ روکتی ہے۔ تو نماز مؤنث ہے چونکہ اس کے اندر گول تا بھی ہے، نماز روکتی ہے۔ اب اگر یہاں مذکر ہوتا نا، جیسے سوم ہے، سوم نماز روزہ، تو یہاں ہوتا ینہا، ینہا۔ اب یہاں ہے تنہا، تو روکتی ہے۔ عن سے متوتا ہے من یعنی سے، روکتی ہے فحشاء والمنکر۔ دو چیزوں کے بارے میں بتایا کہ فحشاء بے حیائی سے روکتی ہے، نماز آپ کو بے حیائی سے روکتی ہے۔ فحشاء، فحش، فاحش، یہ سارے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے الفاظ وہ بے حیائی کے لیے اور برائی کے لیے آتے ہیں۔ اور منکر جو لفظ ہے، منکر، وہ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے برائی۔ تو یہ فحش اور فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، نماز روکتی ہے۔ اب ہماری نمازیں کیسی ہوں گی تو وہ نمازوں کا فرق تھوڑا بہت ہوگا، لیکن نماز کا باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ لکھ کے دے دیا ہے کہ اللہ نماز آپ کو برائی سے روکے گی۔ اچھا جی، یہ ہمارے پاس ہے جی ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ یہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہم یاد کرتے ہیں نا، اس کی یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی نہ کوئی قرآن میں آیا ہوا ہے، یہ کوئی آیت نہیں ہے قرآن مجید کی، نہ ہی یہ کوئی حدیث کا ٹکڑا ہے یہ جو ایمان مفصل پڑھتے ہیں یا ایمان مجمل پڑھتے ہیں، بلکہ یہ مختلف آیات اور مختلف احادیث کو جوڑا گیا ہے کہ ہمارے ایمان میں یہ حصہ ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے ایک لائن دو لائنوں میں لکھ دیا ہے تاکہ یاد ہو سکے اور ہماری توجہ کا جو ہے وہ اس پہ مرکوز رہے۔ تو اس کو جوڑا گیا ہے، یعنی یہ کوئی قرآن حدیث سے الگ چیز بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ چیز کو سمجھیے گا۔ تو ایمان مفصل، مفصل جیسے پتہ ہے کہ مفصل یعنی تفصیل کے ساتھ ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس میں آمن تو، آپ الفاظ پہ غور کریں، ٹھیک ہے، صرف الفاظ سیکھیں ہم۔ یہ لفظ ہے آمن تو، اس میں انا چھپا ہوا ہے، انا یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا لفظ ہے، اور اس کو کہتے ہیں متکلم، بولنے والا کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا، آمنتو میں ایمان لایا، باللہ اللہ پر، یہ جو با ہے اللہ پر، اور ملائکتہ، ملائکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جو کہ اپنے ان کے پر ہوتے ہیں اور یہ اپنی شکل و صورت کو بدل بھی سکتے ہیں، اور یہ نورانی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ معصیت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے یہ بجا لاتے ہیں۔ تو ان پہ بھی ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے، اللہ پر بھی ہے اور ملائکہ پر بھی ہے، وہ کتبی ہی اور اس کی کتابوں پر بھی ہے۔ کتابیں 4 کتابیں ہیں، ایک ہے آپ کا تورات، پھر زبور، انجیل اور قرآن مجید، یہ 4 کتابیں ہیں، ان چاروں پر ہمارا ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم شریعت میں جس پہ ہم پہ لاگو ہے وہ ہے شریعت محمدی یعنی قرآن مجید کی اتباع کرنا۔ اور اس کے علاوہ صحیفے بھی اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ صحیفے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جہاد کے بارے میں ایک پورا کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، نماز کے بارے میں کسی کو کوئی باب چیپٹر جو ہے نا وہ نازل کر دیا کسی پیغمبر پر، تو 100 صحیفے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں۔ تو ہم ان سب کتابوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، ہم ان سب پر بھی ایمان، میں اس پہ بھی ایمان لایا، میں
अच्छा चले, मैं दोबारा फिर जो है उसकी रिकॉर्डिंग कट गई थी, दोबारा शुरू करते हैं। तो ये अमन तो बिल्लाहि, आमन तो मैं अन्ना छुपा हुआ है, मैं ईमान लाया बिल्लाहि अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके मलाइका पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। रसूल 1,24,000 के करीब पैगंबर हैं, और कम और बेश हम इसलिए कहते हैं कि लुकमान हकीम के बारे में क्लियर नहीं है, हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में क्लियर नहीं है। हमारे पास कुरान मजीद में तकरीबन 26 अंबिया कराम के नाम हैं। 26 के अलावा जितने भी पैगंबर हैं उनके बारे में अहादीस में हमें तस्करे मिलते हैं, या फिर रसूलुल्लाह ने फरमा दिया तो हमने उसको मान लिया। तो हमारा तमाम पैगंबरों पे जो है वो ईमान है, और हम एक दूसरे को फ़ोकियत नहीं देते, बल्कि वो सब अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हैं, और वो मासूम हैं। पैगंबर जो होते हैं वो मासूम होते हैं, उनका ताल्लुक अल्लाह से भी होता है और मखलूक से भी होता है। वो अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक पहुँचाते हैं। तो हम तमाम रसूलों पर ईमान लाए। ये आप देख रहे हैं कि मलाइका भी जमा है मलक की, मलक, और कुतुब जो है किताब की जमा है, रसुल जो है ये जमा है रसूल की, भेजा हुआ पयाम्बर। वल यौमिल आखिरी और आखिरी दिन पर भी, जो 50,000 साल के करीब है, वो दिन जो है क़यामत का दिन इससे मुराद है। और मैं रोज़े आखिर आखिर पे भी मैं ईमान लाया। वल क़द्री और तकदीर पर भी, कदर का मतलब होता है तकदीर, और तकदीर पर भी, खैरिही व शर्रिही, कि उसकी जो भलाइयाँ हैं, व शर्रिही और जो शर है उसका, यानी अच्छी बुरी तमाम तकदीर पे वो से क्या है, वो मिनल्लाह ताला, वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला ने मेरी तकदीर में जो लिखा हुआ है वही है। वल बासे और बास यानी कि दोबारा उठना, बास का मतलब होता है दोबारा जी उठना, बादल मौती मौत के बाद, इस पे भी मेरा ईमान है। तो कितनी चीजें हो गई, अल्लाह पे, मलाइका पे, कुतुब पे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजों का जिक्र यहाँ पर है जी, ठीक है जी। तो इसको जो है दोहराना चाहिए ताकि हमें पता हो बाज़ औक़ात कि हम जो है वो यानी हम अपने ईमान की तजदीद करते रहें। ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र भी करते रहना चाहिए आखिरी ज़माने में, बहुत ज़्यादा। आपने फरमाया कि सुबह बंदा मुसलमान होगा, शाम को जो है वो फिर काफ़िर हो चुका होगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह जो है वो काफ़िर हो चुका होगा। इतने ज़्यादा फितने आएँगे। तो ईमान की तजदीद किया करें। सहाबा ने अर्ज़ किया, क्या कैसे तजदीद करें? आपने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा पढ़ा करें। तो ये ईमान मुजमल भी देखें ज़रा। मुजमल का मतलब होता है कि इजमाली तौर पे, यानी खुलासे के तौर पे। एक तो ऊपर जो है ना, पूरा तो आपको ऊपर जो बताया तफसील के साथ बताया कि 7 चीज़ें हैं जिस पे ईमान लाना है, और यहाँ पर आपको उसका एक खुलासा देते हैं। आमनतो, ये वही लफ्ज़ है कि अना आमनतो, मैं ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह पर। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो जो हमारी शरीयत में जो जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो माजी में इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हम जो नियत करते हैं नमाज की, तो वो भी माजी में करते हैं। अभी अगर हम नमाज की नियत कर रहे होते हैं ना, तो आप माजी में नमाज नियत करते होते हैं, उसके सीगे जो होते हैं वो माजी में होते हैं। इसी तरह जो आप निकाह करते हैं, निकाह, तो उस वक्त भी जो है आपका सीगा जो होता है वो माजी का सीगा होता है। तो ये माजी का सीगा, इसमें जो है वो तौसीक होती है, ताकीद होती है, श्योरिटी होती है। तो मैं ईमान लाया अल्लाह पर, कमा, कमा का मतलब होता है, आपको हर जगह मिला करेगा, कमा का मतलब होता है जैसे के, एज, जैसे के, हुआ, वो, बेअस्माइही, अपने नामों के साथ है, बेअस्माइही, अपने हुआ बेअस्माइही, वो अपने नामों के साथ है, उसके नाम है, अल्लाह ताला के जो नाम है, अस्माए हुस्ना, एक 99 नाम है अल्लाह ताला के। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है हदीस पाक में कि जिसने याद किया उन नामों को तो वो दखल अल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल हो गए। तो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, उन सब सिफ़ात पे जो है मैं ईमान लाया, और उसके नामों पर भी, व सिफ़ात ही, और उसकी सिफ़ात पे भी। व क़बिल तो, ये भी माज़ी का सीगा है, ये देखो दोबारा आ गया, यानी ये वर्ब है कि ये वर्ब ये है। ये भी अना इनके अंदर छुपा हुआ है, चूँकि ये जो तो है ना, तो का मतलब अना होता है। व क़बिल तो, और मैंने कबूल किया, जमी तमाम, अहकामिही, उसके अहकाम। इक़रारुन, इकरार करता हूँ, ये इकरार है मेरा, बिल लिसानी, जुबान से कहना लाजमी है अहबाब।
ये नहीं कहना कि आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे पता है बस, वो हाँ बस ठीक है, मैं बस ठीक है मुझे पता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसे नहीं है भाई। आपने जुबान से कहना होता है, इकरार बिल्लिसानी, जुबान से कहना होता है, और इकरार है वो तस्दीकुन, और तस्दीक भी है बिलकल्बी, दिल से तस्दीक करते हैं। तो इकरार भी है और तस्दीक भी हो गई। अच्छा, ये ईमान मुजमल था। इसको बाज़ औक़ात ना दोहराया करें, बाज़ औक़ात आपको टाइम मिला करे तो इसको दोहराया करें, आपको इसका लफ्ज़ लफ्ज़ समझ आ गया इंशाल्लाह। अव्वल कलमा, ये 6 कलिमे हैं। अब ये कलिमात जो है ना, ये कलिमात भी ऐसे ही हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये ना कुरान है ना हदीस है, लेकिन क्या किया गया है कि कुरान और हदीस को टुकड़े को जमा करके ना हमें एक खुलासा उलमाए कराम ने दिया है, जिसको यानी जिस तरह हमने बाकी उलूम हमें उलमाए कराम ने दिए हैं, हदीस को जमा करके दे दिया है, कुरान को जमा करके दिया हुआ है, हमें जो है वो तसव्वुफ को जमा करके दिया गया है, सीरत को जमा करके दिया हुआ है। इसी तरह उन्होंने जो है वो हमारे लिए, बच्चों के लिए और नए मुसलमानों के लिए जब वो इंटर होते हैं इस्लाम में, तो वो उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। और हमें, मैंने कहा ना, तजदीद ईमान के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे ये कलिमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, आपको ना कुरान मजीद में दिखाई देगा ना हदीस में दिखाई देगा आपको, ये कलिमा जो हम पढ़ते हैं, कलिमा तय्यबा। लेकिन क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह भी कुरान मजीद में है और मोहम्मद रसूलुल्लाह भी कुरान मजीद में है। तो दो जुज़ों को जोड़ा गया है और उससे जो है कलमा तय्यबा आया है। और वो क्या है, ला ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्ला सिवाय अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मुहम्मदुन, मोहम्मद जो है, रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। आपने तर्जुमा उल्टा करना है, यहाँ से अल्लाह के रसूल हैं, आपने हैं कहना, ये जो है हैं ये लाजमी है, यानी इसको समझिए बात है कि ये है जो है अल्लाह के रसूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो थे नहीं कहना, थे से बंदा काफिर हो जाता है। यहाँ काना वगैरह कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो कोमा भी नहीं है। तो आपने ये कहना, उसके बाद आपको कहना चाहिए सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, चूंकि रसूलुल्लाह का जिक्र आया है ना, अगरचे यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन हम सब पे लाजिम है, क्योंकि वो दूसरी हदीस से साबित है कि जहाँ मेरा जिक्र आए वहां आपने दुरूद पढ़ना है, जो नहीं पढ़ता वो बखील है। तो हमें जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम भी जो है वो पढ़ना चाहिए। इसके बाद दूसरा कलमा है, उसको शहादत का नाम दिया गया है, गवाही। अशहदो, मैं गवाही देता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा, के नहीं, अन का मतलब होता है कह, ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, वहदहू सिर्फ वही, वहदहू का मतलब है वो अकेला, वहदहू वो अकेला, ला शरीका लहू, ला शरीका नहीं है कोई शरीक लहू उसके लिए, उसका कोई शरीक नहीं है। वो अशहदो, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना मुहम्मदन, अन्ना के बेशक, मुहम्मदन जो मुहम्मद है, अब्दुहू उसका बंदा है, ये हु जा रहा है अल्लाह की तरफ कि वो उसका बंदा है, हम कहेंगे खास बंदा है। व रसूलुहू, और उसका रसूल है, उसका भेजा हुआ है। ये है कलमा शहादत। तीसरा कलमा जो है वो है सुबहान अल्लाह, इसको तमजीद बोलते हैं। तमजीद का मतलब होता है बुजुर्गी बयान करना, तमजीद। मजद, मजद का मतलब होता है बुजुर्गी, मजीद आपने सुना है, और तमजीद का मतलब होता है बुजुर्गी बयान करना। अच्छा, जैसे तालीम है, इल्म देना और लेना। सुबहान अल्लाह, पाक है अल्लाह जल्ल शानुहु, किस चीज से, हर ऐब से पाक है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है हर ऐब से, अपने शरीकों से पाक है, वो जो हमारे लिए ऐब नहीं है उससे भी पाक है। उसका ना कोई बच्चा है ना ही कोई उसके माँ बाप हैं, वो जैसे था वैसा है। और जितने लोग बातें कर सकते हैं उनके बारे में, जो अल्लाह ने कुरान में या हदीस में नाज़िल नहीं की है, तो वो सब अल्लाह ताला उससे पाक है। अल्लाह ताला हमारे इंसान के जहन में नहीं आ सकता, अल्लाह की कोई मिसाल नहीं है। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला पाक है। इसको कहते हैं तस्बीह। ये जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा, इसको कहते हैं तस्बीह। अगर आपको कुरान मजीद में मिले कि तस्बीह करो, तो आप समझे कि मैंने सुबहान अल्लाह कहना है। अल्लाह से हर चीज को मैंने इसकी नफी करनी है कि उसका कोई, उसमें कोई ऐब नहीं है। वल्हम्दुलिल्लाह, इसको तहमीद कहते हैं। मैंने कहा सुबहान अल्लाह को तस्बीह कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह को तहमीद कहते हैं, यानी कि अल्लाह ताला की तारीफ करना। तो हम बहुत तारीफें करते हैं और शुक्र भी अदा करते हैं, हमसे मुराद शुक्र भी है। वला इलाहा, और नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के,
वअल्लाहु अकबर, और अल्लाह जो है वो अकबर सबसे बड़ा है। ये सुपरलेटिव डिग्री है कि अकबर सबसे बड़ा है। वला हौला, और नहीं है हौल। हौल का मतलब भी ताकत होता है, और वला कुव्वता, और कुव्वत का जो है ना वो कुव्वत का माना भी कुव्वत होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खैर की तौफीक, इसका इसका तर्जुमा करते हैं कि वला हौला, खैर की तौफीक नहीं देता, नहीं है, वला कुव्वता, और ना ही शर से बचने की जो तौफीक है, इल्ला बिल्लाही, सिर्फ अल्लाह की तरफ से ही है, अल अली, ये जो कि आला है, बुलंद बाला है, अजीम, और बहुत बड़ा है। ये अली भी जो है, अली ये भी मुबालगा का सीगा है, मुबालगा है, इसमें एक्सजरेशन है, बहुत बुलंद है, अल अजीम, और बहुत बड़ा है। इन्होंने क्या तर्जुमा किया है जरा देखते हैं। गुनाहों से बचने की ताकत, समझ आइए बात की। हौल का मतलब भी ताकत ही होता है और कुव्वत का मतलब भी होता है, तो हम तर्जुमा ऐसे करते हैं, गुनाहों से बचने की ताकत और नेकी की तौफीक नहीं, मगर अल्लाह की तरफ से ही अता होती है, जो बहुत बुलंद और बहुत अजमत वाला है। इस तरह चौथा कलमा है तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करना। ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं है। वहदहू, सिर्फ वही है, वो अकेला है। ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। लहुल मुल्को, उसी की मलकियत है, उसी की बादशाहत है। मुल्क, मुल्क वही जो मुल्क है, मुल्क पाकिस्तान, यानी कि बादशाहत, उसी की बादशाहत है। वलहुल हम्दो, और उसी की तारीफ है, उसी की शुक्र है। युहयी, वो जिंदा करता है, वो युमीतो, और मारता है, उसी के हाथ में है। ये जिंदा करना और मारना ये उसी के हाथ में है। वह हुआ हय्युन, और वो खुद जिंदा है। ला यमूतो, वो नहीं मरता। अबदन अबदा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, हमेशा हमेशा का जिंदा है वो। जुल जलाले, जुल जलाल, ये जू जो आता है, जू का मतलब होता है वाला, इसका जो मुअन्नस होता है वो है जाता, ठीक है, जू वाला। जलाल जलालत, जलालत का मतलब होता है रोब दाब, वही जलाल वाला है। वल इकराम, और करम वाला है, इकराम वाला, करम वाला है। बियदिही, उसके हाथ में, देखो बी का मतलब है में, यद हाथ को कहते हैं, और ही का मतलब है उसके, उसी के हाथ में है अल खैरा, सारी भलाई। ये अलहम्द जिस कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ, इस तरह है अल खैर, सारा खैर जो है वो अल्लाह के हाथ में है। वह हुआ, और वो अल्लाह जो है, अला कुल्ली, हर चीज, शेइन, अला कुल्ली शेइन, हर चीज पर, कदीर, बहुत कुदरत वाला है, हर चीज पे, हर चीज पे उसकी ताकत है। ये देखें जरा क्या तर्जुमा किया है, वही जिंदा करता है और मारता है, और वो हमेशा जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। बड़े जलाल वाला और बुजुर्गी वाला है। इकराम का माना बुजुर्गी किया इन्होंने, और हम करम कहते हैं, करम वाला है। अच्छा, इसके हाथ में है भलाई, हर तरह की भलाई, और वो हर चीज पर बहुत कादर है, ठीक है, और हमेशा कादर है, और मुसलसल कादर है। ये जो इसका सीगा है ना, जो जिस तरह लिखा हुआ है कदीर, उसके मानी बता रहे हैं। पांचवा कलमा जो हमारे पास है वो है इस्तिगफार, जिसमें हम अल्लाह ताला से मगफिरत तलब करते हैं। वो कलिमा जिससे आप अल्लाह ताला से तौबा कर सकते हैं, मगफिरत तलब कर सकते हैं, वो ये कलिमा है। कितना बड़ा काम किया, अजीम काम किया उलमा करामों ने, कि हमारे लिए उन्होंने जो है वो चीज को आसान किया हुआ है। आम ये गली गली में हर बच्चा ये पढ़ता रहता है, और हर खातून, बूढ़ी खातून जो बिल्कुल उसने स्कूल नहीं गई, उसको भी ये आता है सारा। ये सारी मेहरबानी उलमा कराम की है कि उन्होंने जो है वो गोहर बारे कुरान और हदीस से निकाले हैं। तो देखिए इस्तगफार कितना जबरदस्त बनाया हुआ है। कभी कभी इसको, ये मैं कहता हूँ, आपको कहता रहता हूँ कि मुनाजात को इसकी आदत डाले। मुनाजात से आपका जो सफर है, रूहानी सफर, वो ऐसे स्पीड जो है ना, स्पीड पकड़ता है मुनाजात से। तो आप मुनाजात में क्या बातें करेंगे अल्लाह ताला से, क्या बातें कर सकती हूँ मैं, क्या बातें, मुझे तो बातें करना नहीं आती, मुझे तो दुआ करना नहीं आती, वो ये दुआ है। देखो ये बात जो है ना, इस बात को आप अल्लाह ताला से कहें, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने परवरदिगार से माफी तलब करती हूँ। देखा ना, अब कितना प्यारा है जुमला है। अब ये जुमला जो है ना, आप सिर्फ यही जुमला पकड़ के बैठ जाएं तो सारी रात इबादत हो सकती है इस पे, कि अस्तगफिरुल्लाह, मैं अपने अल्लाह से, मैं अपने परवरदिगार से, मैं अपने करीम से, अपने खालिक से, अपने मालिक से मगफिरत तलब करती हूँ। और वो ऐसे उसको आप ना बार बार कहें और शर्मिंदा हूँ कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ
کہ کتنا پروردگار میرا کتنا کریم ہے، کتنا فضل فرمانے والا ہے، فلاں 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 جگہ پہ میری کرم نوازی کی ہے میرے اوپر، تو میں بس بہت شرمندہ ہوں، استغفر اللہ۔ تو اس پہ آپ کے تہجد کی نماز جو ہے خوبصورت ہو جائے گی، صرف استغفر اللہ پہ۔ ربی جو میرا رب ہے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتی ہوں۔ ربی جو میرا رب ہے، دیکھو نا، رب کا مطلب ہے پالنے والا۔ وہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا جب زلیخا نے بلایا؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، میرا وہ رب ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کے دو رب ہیں، اور اب یعنی وہ جو جس کی اشارہ جا سکتا ہے کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ سے یعنی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں، حرام میں کیسے کر سکتا ہوں، اور دوسرا یہ کہ جو بادشاہ ہے، جو عزیز مصر ہے، جس کے گھر میں رہ رہا ہوں، جو مجھے پال رہا ہے، میں اس کی نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اگر آپ رب کا معنی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے نا آپ کے ذہن میں نہیں بنتا نا، آپ اپنے جو آپ کو پالتا ہے، جو آپ کی تربیت کر رہا ہے، جو آپ پہ کرم کر رہا ہے مسلسل، اس کا دھیان ذہن میں لائے نا، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو کنورٹ کر دیں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں جو ہے وہ میرا رب ہے، کتنا کریم ہے، مجھے وہ کیا کیا دیتا ہے۔ ایک انسان مجھے کیا دے سکتا ہے، یعنی جس کی میں اتنی زیادہ جو ہے وہ شکر گزار ہوں، وہ مجھے کتنا دے سکے گا، لیکن رب تعالیٰ نے مجھے کیا دیا ہے۔ تو آپ اس کو اتنا لمبا کر سکتی ہیں پھر، استغفر اللہ ربی، کہ میں اپنے رب سے مغفرت طلب کرتی ہوں، اللہ سے۔ من کل ذنب، اب دیکھیں یہ کتنی پیاری بات شروع ہو رہی ہے یہاں سے، کہ من کل ذنب، ہر ذنب سے، ذنب کا مطلب گناہ ہوتا ہے، ہر گناہ سے، ہر گناہ سے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے کون کون سے گناہ کیے، میں کہہ بھی نہیں سکتی، تو ذنب ہر طرح کی گناہ سے جو ہے وہ میں مغفرت طلب کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ اذنبتہ، اب اس میں کیا ہے؟ اذنبتہ، میں نے کیا وہ گناہ، اس گناہ کو میں نے کیا، امدن، امدن کا مطلب ہوتا ہے قصدن، جان بوجھ کے میں نے کیا ایسا گناہ جو مجھے پتہ بھی تھا کہ گناہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور پھر بھی میں نے وہ کیا، تو میں اس گناہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے توبہ کرتی ہوں اور میں مغفرت مانگتی ہوں۔ او خطأ، یا پھر میں نے خطا سے کیا، مجھ سے ہو گیا، خطا سے ہو گیا، بس بھول ہو گئی مجھ سے، خطا ہو گئی۔ سرن، وہ گناہ جو میں نے چپ کے کیا ہو، سرن، راز میں کیا ہو، چپ کے کیا ہو، کسی کو نہیں پتا اس کا، صرف میرے رب کو پتا ہے۔ او علانیتن، یا میں نے اعلانیہ طور پہ کیا ہو وہ گناہ، واتوب الیہ، اور میں توبہ کرتی ہوں اس کی طرف۔ توبہ کا مطلب ہے رجوع کرنا، لوٹنا، اور میں لوٹتی ہوں اپنے رب کی طرف، من الذنب، اس گناہ سے، الذی، جو، اعلمو، میں جانتی ہوں، جو میں جانتی ہوں وہ گناہ، اس گناہ سے میں لوٹتی ہوں واپس اپنے پروردگار کی طرف۔ ومن الذنب، اور اس گناہ سے، الذی، جو، لا اعلمو، میں نہیں جانتی، مجھے پتہ ہی نہیں لگا۔ انکا، بے شک تم جو ہو اے میرے رب کریم، انتا، تم ہی، دیکھو دو دفعہ آیا ہے، انکا اور انتا، بے شک تم جو ہو، تم ہی اے میرے رب، علام، علام کا مطلب ہوتا ہے بہت خبردار۔ ہم کہتے ہیں نا علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، علامہ یعنی بہت عالم، تو ہم اللہ تعالیٰ کا نام ہے علام، وہ بہت جاننے والا ہے۔ الغیوب، غیوب، علام الغیوب، غیوب یعنی غیب کی جمع ہے، کہ وہ غیب کی خبروں کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ ستار العیوب، لیکن بہتر کیا بات ہے، خوبصورت بات کیا ہے، کہ وہ ستار ہے، چھپانے والا ہے، پردہ رکھنے والا ہے۔ العیوب، عیب کی جمع ہے، عیبوں کے اوپر وہ پردہ ڈالنے والا ہے، جانتا ہے لیکن وہ ستار بھی ہے، کیا بات۔ وہ غفار الذنوب، وہ غفار بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، مغفرت دینے والا بھی ہے، الذنوب، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ ولا حول ولا قوت، اور نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت، الا باللہ، سوائے اللہ کا تعالیٰ کی طرف سے، العلی، جو بہت بلند ہے، العظیم، اور بہت بڑا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں نا، میں اپنے پروردگار اللہ سے معافی مانگتی ہوں ہر اس گناہ کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر کیا، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ کی جسے میں جانتا ہوں، اور اس گناہ کی بھی جسے میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا ہے، عیبوں کا چھپانے والا ہے، گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے، جو بہت بلند، بہت عظمت والا ہے۔
अच्छा, आखिरी कलमा जो है वो है रद्द कुफ्र, कि अल्लाह ताला की नाशुक्री और अल्लाह ताला का या रसूल का इनकार, वो उसको रद्द कर देना। अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, इन्नी, बेशक मैं जो हूँ, अऊज़ो बिका, मैं तेरी पनाह में आती हूँ, मिन अन उशरिका, कि मैं शिर्क करूं, बिका, तुम्हारे साथ, शैअन, किसी चीज की भी, मैं तुम्हारे साथ किसी चीज को शरीक ठहराऊं, मैं इससे पनाह मांगती हूँ तुम्हारी। व अना अअलमु बिही, और मैं जानती हूँ उसको, कि मैं वाकई ये तो मैं गुनाह कर रही हूँ, शिर्क कर रही हूँ, मैं ऐसे इससे ऐसे शिर्क से लौटती हूँ तुम्हारी तरफ, पनाह मांगती हूँ तुम्हारी, कि मुझसे ऐसे सादर ना हो। व अस्तगफिरुका, और मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करती हूँ, लिमा ला अअलमु बिही, लिमा, उसकी, ला अअलमु बिही, जिसकी मुझे जो खबर ही नहीं है, जिस गुनाह की मुझे खबर ही नहीं है, मैं उससे जो है वो तेरी तरफ आती हूँ और तेरी मग़फ़िरत तलब करती हूँ। अच्छा, पनाह मांगती हूँ। पनामा, वो ये आएगा दोबारा, एक ऊपर जाएंगे ना, इन्नी अऊज़ु बिका, बिल्कुल ये अऊज़ु बिक के साथ है कि मैं जानती हूँ या न जानती हूँ, दोनों की। ऊपर है कि मैं तुम्हारी जो है वो पनाह में आती हूँ, और नीचे है तुम्हारी मग़फ़िरत मांगती हूँ, कि मुझे बख्श दे, मुझे पता ही नहीं लगा उसका। तुबतु अन्हो, ये माजी का सीगा है, तुबतु अन्हो, मैं उससे तौबा करती हूँ, व तबर्रअतु, और बराअत इख्तियार करती हूँ, यानी कि बेजार हूँ, मैं बेजारी इख्तियार करती हूँ, मिनल कुफ्रे, कुफ्र से, इनकार से। कुफ्र के दो माने होते हैं ना, इनकार करना और नाशुक्री करना, कुरान में आएगा, हदीस में आएगा। व शिरके, और शिरक से भी, वल किज़्बे, और झूठ से, किज़्ब झूठ, वल गीबते, और गीबत से भी, वल बिदअते, और बिदअत से भी, यानी दिन में कोई नई बात निकालना, उससे भी तुम्हारी मैं पनाह मांगती हूँ और मफरत मांगती हूँ। वन नमीमते, और चुगली से भी, चुगली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, ये बैत लिया करते थे मुसलमानों से, खवातीन से खासकर, इन चीज़ों पे, कि नमीमा जो है, यानी कि जो चुगली है, उससे भी मैं तौबा करती हूँ और मैं तेरी तरफ आती हूँ, और बेजार हूँ मैं चुगली से। अच्छा, वल फवाहिशी, और बेहयाई से, वल बहताने, और बहतान तराजी पे, कि मैं किसी के बारे में ऐसी बात करूं कि जो उसमें है ही नहीं, वो बहतान है, और अगर वो है तो वो चुगली है, अगर मैं किसी की शैतानी कर रही हूँ, और मैं अगर ऐसे बंदे को बता रही हूँ जिसका फायदा नहीं है उसको बताने का, ना वो उसको ठीक कर सकती है, ना ही उसका कोई लेना देना है उससे, तो ये गीबत है। वल बहतान, और बहतान से भी, वल मासी, और गुनाह से भी, कुल्लिहा, तमाम की तमाम गुनाहों से, हर तरह की गुनाह से जो है मैं बेजार भी हूँ और तौबा भी करती हूँ। वो असलम तो, और मैं इस्लाम लाता हूँ, यानी इस्लाम का मतलब होता है गर्दन रख देना, मैं सरे तस्लीम खम करती हूँ। वह अकूलो, और मैं कहती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये हमारे पास छह जो है वो छह कलिमात भी हमने जो है इसका तर्जुमा, लफ्जी तर्जुमा जो है वो समझने की कोशिश की है। तो चलो, इसमें अगर आपको कोई लफ्ज रहता है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, उसके सीगे की, खासकर ये देखे ना कि लफ्ज कैसा है, लफ्ज को समझे बस, जो असल मकसूद है वो भी है, और बाकी तो फ़ायदा तो होगा ही होगा, लाजिम बात है, इसको पढ़ने से फ़ायदा तो होता ही है। तो ये भी अच्छी किताब है, चलो इसको हम पढ़ते रहेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके समाअतों का, आमना, दीनश, सना, और ये जो लोग नहीं आए ना, ये बड़े ज्यादती करते हैं, बहुत ज्यादती, क्या पास कहिए। अल्लाह के देने के पास टाइम नहीं है, जालिम लोग हैं। चलें, सलामत रहें आप, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।